Hello everyone. In this video we are going to cover exercise 2.4 question number 6 to question number 10 chapter 2 exercise 2.4 linear equations in one variable. We have already covered question number 1 to 5 in our previous video. Now let's start from question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mauli village. One rectangular plot is there which is reserved for construction of school in a village, right? This is a plot which is in the shape of a rectangle. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. What is given? Ratio is given. Length is to breadth, that is 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What they want to fence this plot, right? Fence means they want to cover its boundary, right? They want to cover its boundary at the cost of ₹100 per meter, right? And the total cost will be ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? We have to find out the dimensions. What type of figure is this one? Rectangular. This is a two-dimensional figure. It means we have to find out its dimensions means we have to find out its length and breadth, right? And what is given to us? The ratio is given and the cost of fencing is given. The total cost of fencing is given. So let's start with it. Let ratio of length is to breadth is 11:4. If ratio is given, how we can find out length? What does ratio means? It means when we divided this length by breadth, actual length of the plot when divided by its breadth, one common factor was there that cancelled out, right? And the lowest form will become 11:4. Now we will consider that common factor as x. So length will become, therefore length will be 11x and breadth will be 4x. As we know that these two are its length and these two opposite sides are its breadth. Its length is 11x and breadth is 4x. Breadth is 4x, right? Now we want to fence this plot. Fence means we want to cover its boundary. Boundary means we need to calculate its perimeter. Firstly, we need to calculate the length of its boundary. Length of its boundary means perimeter of this rectangular plot. After calculating the length of boundary, the cost of per meter square is ₹100. Then what is the length of total boundary? We will calculate first and then we will multiply it with 100 to get our total cost. अब total cost कैसे निकलेगी? हम perimeter को किससे multiply करेंगे? Perimeter multiply by 100, right? Perimeter means जितना हमें फेंस करना है उसकी टोटल लेंथ. हमें कितना फेंस करना है? इस पूरे प्लॉट की बाउंड्री को फेंस करना है. तो पूरे प्लॉट की बाउंड्री क्या है? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर. अब पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के बाद द कॉस्ट ऑफ पर मीटर इज 100. इट मींस टोटल पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स अस total cost of fencing, right? And total cost of fencing is 75,000. After getting this cost, we will equate it with 75. Now, perimeter of plot is, what is the formula to calculate the perimeter of rectangle? That is 2 multiply by length plus breadth.
This is 2 multiplied by, what is its length? 11x. And what is its breadth? 4x. It gives us 2 multiplied by 15x, which is equal to 30x meters. 30x meter is the total length of the boundary of this plot which we need to fence, right? जिसको हमें fence करना है, वो total length कितना है? 30 meter. Now, cost of per meter square, per meter, not per meter square. Fence means boundary, means length है, length is in meters. इसकी लेंथ किस में आएगी? मीटर्स में ही आएगी ना, तो पैरीमीटर भी मीटर में ही आएगा. कॉस्ट ऑफ पर मीटर इज ₹100. कॉस्ट ऑफ, हमें कितना करना है? 30x मीटर. 30x मीटर is 100 multiplied by 30x, which gives us 3000x, right? This is the cost to fence the entire boundary of this rectangular plot. And in actual, what is the cost given to us? 75,000. It means both these two are same. That's why we will equate them. According to question, हमें ये कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 75,000. Right? Now find out the value of x. We have to transpose this 3000 on another side. X is 25. Now find out the dimensions of the plot. Dimensions means find out its length. Length is 11x. This is 11 multiplied by 25. 11 5s are 55. 5 left. 11 2s are 22. This is 275 meter. Find out its breadth. Breadth was 4x. That is 4 multiplied by 25, 100 meter. What are the dimensions of our rectangular plot? Its dimensions are, its length was 275 meter and breadth was 100 meter, right? And we want to fence it at the cost of ₹100 per meter. अगर आपको अपने क्वेश्चन का चेकिंग करना है तो यू कैन चेक योर आंसर. हाउ यू कैन चेक योर आंसर? फर्स्टली फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. Its perimeter is 2 multiplied by 275 plus 100. It gives us 2 multiplied by 375. It is, multiply them both, you will get 750 meters. Now, what is the cost of per meter square? Cost of 1 meter, not 1 meter square. Cost of 1 meter is ₹100. The total cost will be 750 multiplied by 100. So this is 75,000. It means our dimensions are correct. Now let's move on our next question. Okay, let's start with our next question, number 7th. Very good question. Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms, right? Shirt material that costs him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. Here we have full stop. What does it means? Hassan is like a shopkeeper, right? He bought 2 types of material for school uniform. One is shirt material and another one is trouser material, right? And what is the cost? 2 types of material we have. One is like shirt material and another one is trouser material, right? What is the cost of per meter of shirt?
पर मीटर, बेटा जब हम मार्केट से भी क्लॉथ खरीदते हैं तो हमें पर मीटर के हिसाब से ही कॉस्ट मिलता है ना, पर मीटर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर मीटर? पर मीटर कॉस्ट is ₹50. What is its cost? ₹50. And for trouser, what is the cost of per meter? Per meter cost is ₹90. ट्राउजर का जो क्लॉथ है वो शर्ट के क्लॉथ से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ? For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material, and again we have full stop. हर 3 मीटर शर्ट्स के पीछे उसने 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल खरीदा. What does it means? अगर उसने 3 मीटर शर्ट्स का मटेरियल खरीदा, अगर उसने 3 मीटर शर्ट्स का मटेरियल खरीदा तो उसके पीछे उसने ट्राउजर का मटेरियल सिर्फ 2 मीटर ही खरीदा है. मीन्स अगर उसने 6 मीटर शर्ट्स का मटेरियल खरीदा, 4, this is 5 and this is 6, तो ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना खरीदा? ओनली 4 मीटर. आर यू गेटिंग मी? दिस इज 6 मीटर, दिस इज 4 मीटर. मीन्स अगर वो शर्ट का मटेरियल 9 मीटर खरीदेगा तो ट्राउजर का मटेरियल वो कितना खरीदेगा? दैट विल बी 6 मीटर. अगर वो शर्ट का मटेरियल 12 मीटर खरीदेगा तो ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदेगा? 8 मीटर. अल्टीमेटली यू कैन सी वी आर हैविंग फर्स्टली 3 मीटर के पीछे 2 मीटर, 6 मीटर्स के पीछे 4 मीटर. यू कैन चेक देयर रेशियोज. 3/2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 4 3s are 12, 4 2s are 8. मीन्स अल्टीमेटली देयर रेशियो इज 3:2. हमें इसमें क्या दिया हुआ है? इस लाइन से क्या क्लियर हो रहा है कि हमें रेशियो दिया हुआ है शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का. कितनी रेशियो में है? 3:2 की रेशियो में गिवन है. मीन्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल? 3:2 का रेशियो गिवन है हमें, राइट? 3:2 मीन्स for every 3 meter of shirt material he bought 2 meters of trouser material. What does it means? The ratio is given, right? उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? He sells the material at 12% and the 10% profit respectively. अब बेटा पहले उसने इस कॉस्ट के हिसाब से कपड़ा खरीदा. अब खरीदने के बाद वो उस क्लॉथ को जब सेल करेगा तो ऑब्वियसली वो उसी कॉस्ट प्राइस पे सेल तो नहीं करेगा ना जितने का वो खरीद के लाया है. वो उसमें अपना कुछ प्रॉफिट भी रखेगा, अपना मार्जिन भी रखेगा. अब उसके लिए उसने जो अपने शर्ट मटेरियल को कितने % प्रॉफिट पे सेल किया है? 12% पे. और ट्राउजर को कितने % के प्रॉफिट पे सेल किया है? 10% के प्रॉफिट पे, राइट? हिज टोटल सेल इज 36,600. जितना भी वो मटेरियल लेके आया था, जब उसने सारा सेल कर दिया उसके बाद जो उसको टोटल कॉस्ट मिली है, टोटल जो उसके पास अमाउंट बना है, अपना अमाउंट जो उसने सारा सेल करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बना है? 36,600. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? यू हैव टू फाइंड आउट कि उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल खरीदा होगा, राइट? अब बेटा अगर हमें रेशो दिया हुआ है तो कैन वी फाइंड आउट कि यहाँ से शर्ट मटेरियल कितना खरीदा होगा? जब भी हमें रेशो दिया होता है इट मीन्स जैसे देखो यहाँ पे 2 का कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का. इट मीन्स यहाँ पे हमें नहीं पता कितना मटेरियल है ना, तो हम क्या लेंगे? शर्ट मटेरियल इज 3x, शर्ट मटेरियल इज 3x मीटर, राइट? एंड ट्राउजर मटेरियल इज कितने मीटर खरीदा उसने? 2x मीटर्स, राइट? मीन्स इस रेशियो में उसने कपड़ा खरीदा था. तो दिस वी हैव कंसिडर्ड एज x एज देयर कॉमन फैक्टर, 3x मीटर एंड 2x मीटर. अब उसके बाद अगर उसने इतना शर्ट मटेरियल खरीदा है, ये 1 मीटर का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट उसने कितना पे किया होगा 3x मीटर क्लॉथ खरीदने के लिए? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹50. ही बॉट 3x मीटर्स, तो टोटल कॉस्ट फॉर शर्ट मटेरियल विल बी, total cost will be 3x multiplied by
50, that is 150x, and total cost of trouser material will be 2x multiplied by 90, so that is 180x, राइट। ये तो आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली नोट करते हैं कैसे करना है। दिस इज जस्ट फॉर to explain this statement because understanding of the question is more important than solving it. जब तक आप क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप स्टेटमेंट फ्रेम नहीं कर पाओगे, इक्वेशन फ्रेम नहीं होगी तो सॉल्व नहीं होगी, है ना। तो पहले तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए थी। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ per meter of shirt material, what it is, per meter का कॉस्ट कितने is ₹50. now cost of per meter of trouser material is ₹90, right? Ratio of shirt material to trouser material is 3:2. Therefore total shirt material is 3x meter and total trouser material is 2x meters, right? Now we have to find out the cost of total shirt material. Now let's find out the cost of total shirt material is, कितना है टोटल शर्ट मटेरियल 3x मीटर, और पर मीटर का कॉस्ट कितना है ₹50, तो टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा 150x. दिस इज ₹150x. इज इट क्लियर? नाउ फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ टोटल ट्राउजर मटेरियल. कॉस्ट ऑफ टोटल ट्राउजर मटेरियल इज, अब टोटल ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा है 2x मीटर, और पर मीटर का कॉस्ट कितना है ₹90. तो टोटल कॉस्ट विल बी ₹180x. नाउ वी गॉट आवर कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल एंड टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल. अब बेटा उसने जितना भी शर्ट मटेरियल खरीदा उसने खरीदा 150x रुपीज़ का, और जो ट्राउज़र मटेरियल उसने खरीदा वो खरीदा उसने 180x रुपीज़ का. अब वो इसको लेके आने के बाद वो इसको सेल करेगा. अब ये तो आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस, राइट. दिस इज, यू कैन से दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. इधर यू कैन से दीज आर योर CPs, CP of shirt material and CP of trouser material. Now we have to find out their selling price. अब सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस अगर उसका प्रॉफिट का केस बन रहा है, दिस इज द केस ऑफ प्रॉफिट ना, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट. अब अगर प्रॉफिट का केस बन रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. यही होता है ना प्रॉफिट. बेटा सेलिंग प्राइस मीन्स उसने कितने की वो चीज़ बेची है आगे. अब जब वो बेचेगा तो वो ये वाले पैसे तो लेगा ही लेगा, पर इसके ऊपर वो कुछ अपना प्रॉफिट भी लेगा ना. अब जो प्रॉफिट है वो कितना है, 12% है शर्ट मटेरियल के ऊपर और 10% है
ट्राउजर्स मटेरियल के ऊपर, राइट। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस, अगर प्रॉफिट का केस है तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है। बट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में है, सीधा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। नाउ एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, टोटल एसपी शर्ट मटेरियल किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस 12% ऑफ सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल। बेटा देखो, शर्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस आएगा। हमें जब भी कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमारी एसपी के ऊपर नहीं होता है। प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जितने की हमने चीज़ खरीदी है उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा ना। इफ़ अगर मैं ये पेन 20 रुपीज़ का खरीदती हूँ और अगर मैं आपको ये पेन 25 रुपीज़ का सेल करती हूँ, तो मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर? 20 रुपीज़ के ऊपर। मीन्स जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी उसके ऊपर मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर मैं इसको 25 का आपको सेल करूँगी तो एसपी के ऊपर उसको 25 का प्रॉफिट नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग मी? जो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस होते हैं ना, वो हमेशा हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। ऑलवेज ऑन सीपी, नॉट ऑन एसपी, ठीक है। तो दिस इज सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अभी सिर्फ हम शर्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह पे शर्ट मटेरियल की ही सीपी आएगी। व्हाट वाज इट्स सीपी? 150x प्लस इसके ऊपर 12% का प्रॉफिट भी है। 12% ऑफ 150x, this is 150x, 12% means 12 upon 100, of means multiply 150x, right? Now let's calculate it, as this is a single term and these are the factors. Some of the factors are common among numerator and denominator. You can cancel them. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 6s are 12. This is 150x plus 6 3s are 18x. Total SP is 168x. This is total selling price of 160 of shirt material. जब उसने सारे का सारा शर्ट मटेरियल अपना सेल कर दिया, उसके बाद उसको लास्ट में कितना अमाउंट मिला? 168x rupees. Clear? Now find out the cost price of trouser material. Cost price है, we have to find out selling price of trouser material. SP of trouser material is cost price. किसका cost price? ट्राउजर मटेरियल की बात करें तो ट्राउजर मटेरियल का ही कॉस्ट प्राइस आएगा, प्लस इसको उसने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। इतना उसने 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बेटा जब भी हमें परसेंटेज दिया होता है तो परसेंटेज का कोई बेस होता है। यहाँ पे बेस कौन सा है? कॉस्ट प्राइस। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस? 180x। ट्राउजर का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 180x एंड 10% ऑफ 180x. नाउ कैलकुलेट इट. दिस इज 180x प्लस 10 upon 100 of means multiply 180x. 0 you can cancel out. Now what is left? 180x plus 18x. 180x plus 18x. If you will add them both, you will get x. This is 8. 198x. This is the selling price of total ट्राउजर मटेरियल। अब सारा मटेरियल सेल करने के बाद उसकी शर्ट की जो एसपी है वो इतनी है, मतलब जो शर्ट्स को सेल करने के बाद जो उसको लास्ट में अमाउंट मिला है वो इतना है, और सारे ट्राउजर सेल करने के बाद उसके पास जो लास्ट में अमाउंट बना है वो ये है 198x।
अब उन्होंने क्या बोला कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 36,600 मीन्स दिस वन प्लस दिस वन विल बी इक्वल टू 36,600. According to question, SP of shirt material plus SP of trouser material is equal to 36,600. This is the total price, right? Which this is the total sale. जो उसने पूरा सेल किया है उसका जो अमाउंट है वो इसके पास फाइनल अमाउंट ये बना है. तो शर्ट मटेरियल का कितना था 168x एंड ट्राउजर का 198x इक्वेटेड विथ 36,600. As these both are like terms, because both are having x, you can add them. This is 6 is equal to 36600. Now you have to find out the value of this x. This is 36600 divided by 366. It will go with 100. What is the value of x? X is 100. Now you have to find out the total trouser material. And what was the total trouser material? 2x. Is equal to 2x meter, right? This is 2 multiplied by 100 meter, that is 200 मीटर उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा है. और कितने 100 मीटर उसने शर्ट मटेरियल खरीदा है 300 मीटर, राइट? बिकॉज शर्ट मटेरियल वॉज 3x ना, तो शर्ट मटेरियल उसने 300 मीटर खरीदा और ट्राउजर मटेरियल उसने 200 मीटर्स खरीदा. Let's move on our next question. Okay, now next question number 8. Half of the herd of deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby, right? One herd of a deer is there. Half of them are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. What you have to do? One herd of deer means one group of deer is there, and half of them are grazing in the field. Beta, we don't know how many deer are there in this herd of deer, right? Let us assume total x number of deer are there in the herd of deer, right? How many deer? X deer. Now half of them are grazing in the field. Half of them means अगर आपने किसी चीज़ का हाफ करना होता है तो कैसे करते हो? अगर मैं बोलूँ कि 10 डियर है तो उसमें से उसका हाफ करोगे तो कैसे करोगे? 10 का हाफ कितना होता है? 5. You have to divide it by 2. That is 5. If you are having 80, so you have to divide it by 2. You will get 9. If you are having 30 divided by 2, you will get 50. अब यहाँ पे है ही x है तो उसका हाफ कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 2. जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 के साथ तो इसमें से हाफ कितने आ जाएंगे? x अपॉन 2. अगर इसमें से हाफ निकल गए तो बचे कितने? हाफ बचे ना. अब एक हाफ आ गया x अपॉन 2 और एक हाफ आ गया x अपॉन 2. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल x नंबर ऑफ डियर बनेंगे, ठीक है? बिकॉज 5 अगर ये टोटल 10 होते तो 5 प्लस 5 विल बी 10. अगर ये x है तो x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 विल बी x. आप स्क्वायर करके देख लो, चाहे x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2. दिस इज डिनोमिनेटर इज सेम, इट इज 2x एंड इट इज x अगेन, राइट? अब हमने क्या किया, इसका हमने कर दिया हाफ, x अपॉन 2 एंड x अपॉन 2. अब क्या हुआ, उन्होंने बोला हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डेयर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ये जो फर्स्ट हाफ है व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड. दे आर इन फील्ड, लिख दो इसको. एंड
3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अगर ये वाला हाफ है तो रिमेनिंग कितने हैं, हाफ, जो बचा हुआ हाफ है उसका 3/4, राइट। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है ना, इसका कितना लेना है आपने, 3/4। सारे नहीं लिए हैं आपने, इसमें 3/4 लिया, फिर भी कुछ बच जाएंगे, है ना। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब ये सारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाय। दीज नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। इतने सब निकालने के बाद कितने बच गए हमारे पास, 9 बच गए। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। इज इट क्लियर। अब हमने इस x को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दीज आर टोटल नंबर ऑफ डियर, दीज हाफ ऑफ देम आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग हाफ, 1 हाफ इज दिस, 1 हाफ इज दिस, जो रिमेनिंग हाफ है उसका 3/4 दे आर प्लेइंग। एंड after all these 2, the rest 9 are drinking water. It means अगर ये कौन टोटल इतने रेयर हैं आपके पास उस ग्रुप में, कुछ फील्ड में हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ पानी पी रहे हैं। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डियर बनते हैं, दैट इज x, राइट। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वन थिंग इज वेरी क्लियर। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि आपको क्लियर हो जाए कि चीज़ें कैसे डिवाइड हो रही हैं। इन एक x नंबर ऑफ डियर हैं, उनको डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। अगर आप इन तीनों हिस्सों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x, राइट, टोटल नंबर ऑफ डियर। द नेक्स्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ डियर in this herd, means you have to find out the value of x. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। let total number of the deer in herd is equal to x. These are total number of deer in herd. Now number of deer grazing nearby, no, these are grazing in the field, right, grazing in field. How many are there, half of it. Half of it means you have to divide it by 2, right। ये हाफ आ गए और हाफ इसमें अभी बचे हुए हैं, वो कितने हैं, अगेन x/2। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब ये रिमेनिंग कितने हैं, अगर टोटल x हैं, हाफ यहाँ पे चले गए, अगर ये वाले हाफ यहाँ पे आ गए, ये वाले हाफ x/2, तो रिमेनिंग कितने बच गए, x/2। एंड 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स 3/4 ऑफ x/2। नंबर ऑफ देयर प्लेइंग नियर बाय, how many are there, 3/4 of means multiply किसका, remaining, remaining half is x/2। तो what it is, जब when you will multiply them, numerator with numerator and denominator with denominator, 4 2s are 8। and how many are there those who drinking water, number of deer drinking water, that are 9. If you will add all these 3, you will get total number of deer in the herd. Now frame your equation. To frame your equation, you have to add them all. x/2 plus 3x/8 plus 9 is equal to total number of deer in the herd, right। टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे, x, और वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ पानी, जो हाफ है वो पानी, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, some are playing, and these 9 are drinking water. Now what we have to do next, we have to take LCM. But before taking LCM, we have to collect our like terms. As this is x/2, 3x/8,
it is better to transpose this x on another side, and because all these three terms are having x, and it is better to collect all the terms which are having x on one side, x upon 2 plus 3x upon 8. when you will transpose it, minus x. now transpose this 9 on another side, यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव. now take LCM. LCM of 2 and 8 is 8. you can find it out. 2 8, this is 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2 2 1s are 2, 2 1s are 2, right? एज 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट भी पता चल जाता है कि 8 अगर 2 का मल्टीपल है और 2 अगर 8 का फैक्टर है तो एलसीएम विल बी 8. नाउ 2 हाउ मेनी इज 8? 2 4 जा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x. 8 हाउ मेनी इज 8? 1 जा, तो ऊपर 1 से. हेयर डिनोमिनेटर इज 1. 1 8 जा, 8 तो ऊपर 1 8 से मल्टीप्लाई होगा. दिस इज minus 8x which is equal to minus 9. solve them, all three are like terms. 4 plus 3 both are having same signs, you have to add them. 7, this is 7x minus 8x upon 8 is equal to minus 9. when you will subtract them you will get minus x, because negative number is larger than the positive. both are having different signs. when different signs you have to subtract them with the sign of the larger number. minus x upon 8 which is equal to minus 9. you can cancel this negative from both the sides. x is equal to 9 multiplied by 8, x is equal to 72. how many total deer were there in the herd? 72 deer were there in the herd. total how many deer were there? 72. hope it is clear. let's move on our next question. Okay, let's do our next question. A grandfather is 10 times older than his granddaughter, right? Here we have full stop, means one statement is given. Grandfather is 10 times older than granddaughter, means जो grandfather हैं वो अपनी granddaughter से कितने बड़े हैं एज में? 10 times, right? grandfather's age is 10 times the age of granddaughter. he is also 54 years older than her. अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर से दोनों की ही एज में एक और कंपैरिजन दिया हुआ है. यहाँ पे भी एक कंपैरिजन यहाँ पे गिवन है और एक कंपैरिजन दोनों की एज में यहाँ पे गिवन है. क्या गिवन है यहाँ पे? he is means grandfather is also 54 years older than her. जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड से 54 years क्या है एज में बड़े हैं. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एज. अब देखो दो तरह से कंपैरिजन हो सकता है बेटा. अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आपकी एज है 13 years, है ना, आपकी मम्मा की एज है 39 years नियर अबाउट. अब आप इन दोनों में 2 ways से कंपैरिजन करके बताओ कैसे कर सकते हो. एक तो आप ऐड करके बताओ किस तरह से कर सकते हो, और एक आप बताओ मल्टीप्लाई करके. देखो एक तरह से हम बोल सकते हैं अगर ये डॉटर है और अगर ये मदर है ना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मदर की एज है वो डॉटर की एज की 3 times है. मीन्स 3 13s are 39. कैन वी से कि मदर की एज जो है वो डॉटर की एज का 3 times है. 3 times of daughter's age. And second thing is अगर मैं बोलूं कि 39 में आप कितना प्लस करोगे तो 13 में आप कितना प्लस करोगे तो 39 बनेगा. 20 this is 26 है ना, 26. तो एक तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मदर है अगर उसकी एज अपनी डॉटर की एज से 26 years ज़्यादा है, मीन्स अगर आप डॉटर की एज में 36 प्लस 26 करते हो, 36 years प्लस 26 years करते हो तो किसकी एज आ जाती है? मदर की एज. व्हाट डज इट मीन्स? जो मदर की एज है वो अपनी डॉटर की एज से कितनी ज़्यादा है?
26 ईयर्स ज़्यादा है। पर ये दोनों एज है किसकी है तो एक ही पर्सन की है ना, मदर की। बस कंपैरिजन किस तरह से हो रहा है, टू डिफरेंट वे से कंपैरिजन हो रहा है, और एक ही पर्सन की एज दो तरीके से निकल रही है ना। एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर आप निकालोगे 3 टाइम्स है 39, और यहाँ पे 26 ईयर्स ओल्डर है मदर अपनी डॉटर से, तो अगेन यू विल गेट 39 है, राइट। अब इसमें भी ऐसे ही है, जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर है, अगर ग्रैंड डॉटर की बात करें कि इसकी प्रेजेंट एज x है, तो ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, मीन्स ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी फिर 10x। सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने बोला ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। इफ शी इज x ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, x प्लस 54। पर ये दोनों एज है तो एक ही पर्सन की ना, एक ही टाइम पे, दोनों की प्रेजेंट एज की बात ही हो रही है। अब ये दोनों एज एक ही पर्सन की है, तो कैन वी इक्वेट देम, यस वी कैन। तो अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर is x years. So what will be the age of grandfather? Therefore, present age of grandfather is 10x years. 10 times है ना, 10x years. It is also given grandfather is 54 years older than her. It is also given grandfather is 54 years older than her granddaughter. ये भी हमें एक और स्टेटमेंट गिवन है, तो देयरफॉर एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज x प्लस 54। अब ये भी ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है, ये भी ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है, दोनों एजेस में अलग अलग तरीके से कंपैरिजन हुआ है, किसकी एज के साथ, ग्रैंड डॉटर की एज के साथ। पर ये दोनों एज है तो एक ही पर्सन की है ना, तो वी कैन इक्वेट देम। देयरफॉर आप देयरफॉर भी लिख सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन इक्वेट देम बोथ, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्सन की एज है एक ही टाइम पे, राइट। दोनों ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज की ही बात कर रहे हैं, ये भी ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है और ये भी ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है। अगर मैं एक ही पर्सन की एज की बात करती हूँ आज के दिन, तो वो चेंज तो नहीं हो जाएगी ना, सेम ही होगी। तो ये दोनों ग्रैंडफादर की एज है एक ही टाइम पे, राइट। दोनों एज ग्रैंडफादर की है प्रेजेंट एज, तो वी कैन इक्वेट देम। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 10x, transpose this x on this side because both are like terms. Can I solve here? This is 10x minus x gives us 9x is equal to 54. Now find out the value of x. You will get 54 upon 9. What you will get? 6. Answer will be 6. What is granddaughter's present age? 6 years. And what is grandfather's present age? 10 into 6, 60. Or either you can put in this equation x plus 54. 6 plus 54 is 60. आप दोनों में से किसी में भी पुट करोगे, दोनों ही ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज को ही बता रही हैं, तो दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, राइट। तो पहले तो आ गया, कहना ही राइट है, देयरफॉर
ये आंसर है. प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 years and present age of grandfather is 10x, means 10 multiplied by 6, that is 60 years. Or either you can check from here, this is 6 plus 54, ये भी grandfather की ही age है, it gives us 60 only, right? Now let's move on our last question. Okay, let's do our last question. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे की एज की कितनी है? 3 टाइम्स. एक अमन है, कोई पर्सन, और एक उसका बेटा है, सन, राइट. उन्होंने बोला है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. मीन्स अगर सन की एज x है तो अमन की एज कितनी है? 3x, right? 10 years ago, what are you getting from 10 years ago if these are their present age? Please. 10 years ago, दोनों की एज कैसे निकालोगे? 10 years ago. 10 years ago means 10 years back. You have to find out their ages 10 years back. अगर आप अभी 13 years के हो तो आप अपनी 10 years back की एज कैसे निकालोगे? 13 minus 10 करोगे ना, तो you will get 3 years. तो यहाँ पे भी अमन्स एज इज 3x, तो 3x minus 10. 10 minus 3x मत कर देना, 3x बड़ा नंबर है, 10 छोटा नंबर है. You have to subtract 10 from 3x, right? And what is son's age? x minus 10. आपने दोनों की एज निकालनी है 10 years back की, तो अमन्स एज विल बी 3x minus 10, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज 3x है. तो हिज एज 10 years ago was 3x minus 10 and son's age 10 years ago was x minus 10, right? Now what is the question? 10 years ago he was 5 times his son's age. यहाँ पे एक इक्वेशन बोली है उन्होंने बनाने के लिए कि अगर हम दोनों की जो 10 years बैक की एज है उसको कंपैरिजन करते हैं. 10 years ago he was, यहाँ पे was आ गया ना, इट मीन्स we have to put is equal to sign and before is equal to sign जो भी आपके पास स्टेटमेंट है, this is your left hand side and after this you have your right hand side, right? यहाँ पे क्या है? 10 years ago he means अमन was, अमन की 10 years ago क्या एज थी? 3x minus 10. was means is equal to 5 times means multiply his son's age, and what is his son's age? x minus 10. तो 5 times means 5 multiply by his son's age, right? तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन. Let son's present age is x years, right? Now Aman's present age, therefore Aman's present age is कितनी हो जाएगी? 3 times. 3 times means 3x years. Clear? अब लिखिए 10 years ago. 10 years ago. What was son's age? Son's age was x minus 10 years and Aman's age was 3x minus 10 years, right? दोनों ही 10 years छोटे हो जाएंगे ना. अमन भी 10 years बैक और फादर की भी 10 years बैक, तो दोनों की एज में हमें 10 years सब्ट्रैक्ट करने हैं. अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला बेटा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपना स्टेटमेंट बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let's frame our equation.
what it is? 10 years ago, he was means Aman was. Aman was 5 times his son's age. Aman means Aman की 10 years ago Aman की एज कितनी थी? Was की जगह पे is equal to आएगा, that is 3x minus 10. Was is equal to 5 times multiply his son's age. 10 years ago his son's age was x minus 10. Now you have to open these brackets and solve your equation. This is 3x minus 10. 5 multiplied by x, 5 multiplied by 10, distributive property. 5x, distribution of multiplication over subtraction. 5x minus 5 tens are 50. Now collect the like terms. It is better to transpose this 3x on another side, because अगर 3x इस साइड पे जाएगा तो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर 50 इस साइड पे आएगा तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा. वैसे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप किसी को भी ट्रांसपोज कर सकते हो एंड लास्ट में आपके साइंस कैंसिल हो जाते हैं. अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि आप 5x को इधर लेके आना चाहते हो तो यू कैन. दिस इज 3x minus 5x. This is minus 50 was already there. Now transpose this minus 10 on another side. यहाँ पे नेगेटिव है, उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस 10. राइट. Now you can see you have these two terms are having opposite signs, so you have to subtract them with the sign of a larger number, that is minus 2x. Again these two are having opposite signs, you have to subtract them with the sign of a larger number, that is minus 40. This plus minus and minus cancel. X will be 40 upon 2. This is 2, 2s are 4, x is 20. What is x? X is son's present age. So can you find out the present age of father? Son's age is, present age is 20 years. So what is the Aman's age? Aman's age is 3x, that is 3 multiplied by 20. It gives us 60 years. Is it clear? अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे. यहाँ से मैंने आपको जैसे बोला कि यहाँ पे मैंने 5x को इधर ट्रांसपोज किया, आप 3x को भी इधर ट्रांसपोज कर सकते थे. आप ये बेटा कैलकुलेशंस जो होती है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं. यू कैन डू लाइक minus 10 को इधर रहने देते, 50 को इधर से इधर ले आते, you will get positive 50. This is 5x will be there, और 3x को इधर ट्रांसपोज करोगे तो you will get minus 3x. 50 is a positive number and minus 10 is a negative, right? Don't forget to put the signs, and signs of the terms are always before the term. So this is 40, 5x minus 3x is 2x, x will be 40 upon 2, again you will get 20. तो आप कैसे भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. होप यू आर क्लियर. If you have, hope this question is clear to you all, and if you have any doubt, then you can write in your comment section, right? Thank you.